हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। ये एक सीरीज़ है जिसमें कि हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं ऑफ एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री इन 1 मंथ। तो इससे पहले मैंने आपको अराइवल ऑफ यूरोपियंस बताया, फिर हम बैटल ऑफ प्लासी पर आए। नाउ वी आर स्टडीइंग द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट अन अकेडमी ब्रिंग्स यू द नोटिफिकेशन ऑफ प्राइस हाइक अलर्ट। ओके, तो ऐसा है कि जो भी चीज़ आपको बाद में ज़्यादा प्राइस में मिलने वाली है, यू कैन गेट इट विथ 10% एक्स्ट्रा ऑफ बाय यूजिंग द कोड सिंपल वाई टी। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड। ऑल्सो अन अकेडमी ब्रिंग्स दिस एस्पायर प्रोग्राम, जिसमें कि जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं दे कैन गो फॉर दिस टेस्ट एंड द पैटर्न वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स पेपर 1. Okay, it would be conducted on 10th and 25th of every month, and those who are scoring under rank 50, they would be getting the exciting prizes and scholarships from an academy. So recently this is going to be held on 10th of October at 10 a.m. So enroll for it now. See, an academy brings you 3 different kinds of courses. There is no linguistic barrier. Like if you are comfortable in English, then you can purely go for this English batches, and if you are comfortable in English as well as you want the medium to be in Hindi, आप दोनों में सीख सकते हैं। उनके लिए bilingual courses हैं, और अगर आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए पूरी तरह से हिंदी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। So, Unacademy is giving you unlimited benefits with just one subscription, and you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by top educators of India on just one platform. Okay, and see, the coverage of your syllabus would be taken care of, and regular doubt clearing sessions, answer writing sessions, live test series, study material would be provided in video as well as PDF format. See, for this entire process, you will be getting a guide, a personal mentor who would guide you through this entire process, who would tell you how the things need to be and how you can like improve. And see, you can avail all these benefits with just one subscription on Unacademy. So when you are going for the subscription on Unacademy, for getting 10% extra off, you should use the code SimpleYT. दिस इज़ अन अकेडमीज चैम्पियंस कॉन्क्लेव। इसमें के ये सेशंस कंडक्ट करवाएंगे जिसमें आपको टिप्स, गाइडेंस, आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज मिलेंगी बाय द टॉपर्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस 2019. ओके, दिस इज गोइंग दिस वाज हेल्ड ऑन 30th September एंड फ्रॉम 10 AM to 12 AM. सी, करंट अफेयर्स के लिए आपको आपका डेली जो अपडेट है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। फाइन, तो उसके लिए अनअकैडमी आपको फ्री क्विजेस, like they will get you the free quizzes. They are providing you with the free quizzes in which there would be 20 questions and you would be given 20 minutes. The test would be of 40 marks, and at the end of the test you will get the report analysis. Fine, so that you can know that how much you are learning from the day to day events that are going on worldwide and in our country. So these are our channels. When you are going for the subscription, do not forget to apply the code SimpleYT, and also these are the links through which you can join our channels. So now let's come to our topic, that is Battle of Buxar. ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगी, this here we are studying the what. Before that I would like to tell you that what all the things we have studied, like how has been the chain. ओके, जो चेन है वो कैसी थी। पहले सबसे पहले हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया 1498 में कैसे यूरोपियन पावर्स आई इंडिया में। ठीक है, वो कैसे कैसे राइज करती गई। हाउ डिड दे गो फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। ठीक है, वो कैसे रूलर्स से ट्रेडर्स ट्रेडर्स से रूलर्स हो गए, मैंने आपको ये बताया था। दे केम एज द ट्रेडर्स, दे वांटेड रिलेशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इन इंडिया, बट with time they started conquering the Indian states. Okay, they started meddling into the political affairs of our country.
तो वो कैसे कैसे हुआ मैंने आपको वो बताया। और ये क्यों हो रही थी ये चीज़ें, क्योंकि इंडिया में फ्रेगमेंटेशन था एंड द कंट्री वाज डिवाइडेड। ओके, औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो मुग़ल एम्पायर था वो भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, अपने अपने छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे, जहाँ पे किंग्स तो स्ट्रॉन्ग थे, बट when some foreign power came, when some foreign power invaded the kingdom, they were not as strong as they were pretending। ओके, तो अब ऐसा था कि सबसे पहले जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, उससे जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो हार गए थे। उस टाइम पे सिराजुद्दौला थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जब सिराजुद्दौला हार गए, उनकी जगह पे जो उनका कमांडर था मीर ज़फ़र को वहाँ का नवाब बनाया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। वो क्यों बनाया, उनको ब्राइब करके बनाया, उनको ये लाइक दिस वाज अ बेट, उनको ये बेट दिया गया था कि अगर आप हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं करेंगे और अगर आप सिराजुद्दौला को बिट्रे करेंगे देन यू वुड बी गिवन द थ्रोन ऑफ बंगाल। फाइन। तो उसके बाद क्या हुआ, प्लासी में जब हम हार गए, लाइक बैटल ऑफ प्लासी वाज द battle was one remarkable event that paved the way for the East India Company to to enter India, okay, to establish their foothold in India। यहीं से उन्होंने इंडिया में एंट्री करना चालू किया। फाइन। सबसे पहले बंगाल को उन्होंने अनेक्स किया, पूरी तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए वहाँ पे मीर ज़फ़र आए, मीर ज़फ़र के बाद मैंने आपको बताया था कि मीर कासिम आए, क्योंकि मीर ज़फ़र जो थे ही वॉज नॉट एक्टिंग एज पर द कंपनीज इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ऐसा था कि कंपनी उनसे खुश नहीं थी एंड ऑल्सो द कंपनी इट वॉज नॉट विलिंगली गेटिंग ऑल द कंसेशंस इट वांटेड, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि मीर ज़फ़र को फिर हटा दिया। मीर ज़फ़र को हटाने के बाद मीर कासिम को इंस्टॉल किया गया। मीर कासिम वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर ज़फ़र, ठीक है। तो मीर कासिम को इंस्टॉल किया। अब जो हम बैटल ऑफ बक्सर पढ़ रहे हैं वो मीर कासिम से ही रिलेटेड है। फाइन। तो मीर ज़फ़र की कहानी ख़त्म हो चुकी है, सिराजुद्दौला की कहानी ख़त्म हो चुकी है। उसके बीच में मैंने आपको एक और चैप्टर पढ़ाया था, वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वो मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था क्योंकि सी I just wanted you to realize that Indian powers were also there in the picture. Okay, it was like the Indian power, like Maratha, it was just emerging. It was rising at that time, but the rise was suppressed. It was suppressed by the Mughal rulers itself. ठीक है। तो अब ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ था, जिसमें कि जो अफ़गानी रूलर हैं दुर्रानी, अफ़गानी रूलर था, वो इंडिया आया, उसने इंडिया में मराठा को हराया। मराठा की मदद किसने की थी, मैंने आपको बताया था शुजा-उद-दौला ने की थी। ठीक है। अब जो शुजा-उद-दौला हैं उन्होंने जब मदद की थी तो मराठा पार हार गई थी। अब मुगल और वहाँ पे शाह आलम को रीइंस्टॉल करके दुर्रानी चला गया था वापस, ठीक है। ये कहानी थी हमारे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। अब जो बैटल ऑफ बक्सर है, अगर वो आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज बैटल ऑफ बक्सर, देन इट इज सिंपली अ बैटल फॉट बिटवीन द इंग्लिश फोर्सेस ऑब्वियसली, देन अ जॉइंट आर्मी ऑफ नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्परर। सी आप ये तीनों को जानते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियोस, मैंने आपको बताया था नवाब ऑफ अवध कौन थे उस टाइम पे, शुजा-उद-दौला, ठीक है। शुजा-उद-दौला, क्योंकि शुजा-उद-दौला ने ही, याद कीजिए, दुर्रानी की हेल्प की थी। ही फोर्ज्ड द अलायंस विद दुर्रानी टू डिफीट मराठा पार, ठीक है। तो नवाब ऑफ अवध उस टाइम पे शुजा-उद-दौला थे। फिर नवाब ऑफ बंगाल मैंने आपको बताया मीर ज़फ़र को हटा दिया था तो मीर कासिम को बना दिया गया था। फिर द मुगल एम्परर शाह आलम को रीइंस्टॉल करके गया था दुर्रानी। ये आपको कहानी पता है, ठीक है। यू नो ऑल द कॉम्बेटेंट्स ऑफ दिस वॉर ऑलरेडी, ओके। Now let's come to the background, like what actually was the background. As I have told you, like it's like a story. You need to revise the things. You need to keep in mind that what happened in Battle of Plassey, who all were the people who were involved in Battle of Plassey. Then it would be easy for you to connect all the things. नाउ सी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, इसकी मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है। यू नो द होल, लाइक यू नो द स्टोरी लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर बैटल, ठीक है।
फिर मीर ज़फ़र सपोर्ट ऑफ डच। अब ऐसा था कि मीर ज़फ़र जो थे उनको पसंद नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट विलिंगली गिविंग ऑल द कंसेशंस लाइक ट्रेड कंसेशंस टू द कंपनी। तो जो इंग्लिश कंपनी थी उनको भी पसंद नहीं आ रही थी ये चीज़, दे वांटेड सम पपेट रूलर। लेकिन मैंने आपको बोला था कि द किंग हैज़ टू मेंटेन सम डिग्निटी एंड दिस अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इन फ्रंट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मीर ज़फ़र ने जो इंग्लिश पार्ट थी उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए डच को इंस्टिगेट किया था कि आप जाके कंपनी पे अटैक कीजिए, ओके, एंड वी विल हेल्प यू आउट, ऐसा मीर ज़फ़र मतलब बंगाल ने बोला उस टाइम पे। अब क्या हुआ, ये बात इंग्लिश को पता चल गई। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पता चली तो उन्होंने मीर ज़फ़र को हटा दिया, ओके, ही वॉज डिपोज्ड। फिर क्या हुआ, मीर कासिम वॉज इंस्टॉल्ड। मीर कासिम को लेकर आए क्योंकि वो चाहते थे कि वो ऐसे एक रूलर को लेकर आए जो कि ओपोज ना करे उनको। ठीक है, कंपनी चाहती थी कि जो भी चीज़ें हो वो उनके अकॉर्डिंग हो, विदाउट एक्चुअली लाइक कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, दे वांटेड टू टेक ओवर द कंट्रोल। ठीक है, वो नाम नहीं चाहते थे कि हाँ हम कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे वांटेड टू कंट्रोल। क्योंकि देखिए, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को अपने हाथों में ले लेते ऑफिशियली, तो ऐसा होता कि उनको अब उस पर्टिकुलर रीजन को जो सेफ गार्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो भी कंपनी की होती। एंड दे डिड नॉट वांट इट टू हैपन, दे जस्ट वांटेड दैट ट्रेड टू एक्सपैंड, दे जस्ट वांटेड मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम द इंडियन पीपल, फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, तो मीर कासिम आ गए। मीर कासिम जब आ गए तो उसके बाद ब्रिटिश दे वर अनहैप्पी विथ मीर कासिम। वाई? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो नॉट पपेट रूलर, ओके, ही वॉज लाइक वर्किंग अंडर दैम, लेकिन देर वर थिंग्स दैट ही डिसलाइक्ड, ओके। तो उसको जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया कंपनी को, देन ब्रिटिश दे वर नॉट हैप्पी अगेन। ऑल्सो ही कंस्पायर्ड अगेंस्ट द कंपनी। तो ये सब बातें जब पता चली ब्रिटिश को, देन दे वर नॉट हैप्पी, दे डिड नॉट वांट हिम टू द किंग टू बी द किंग, दे डिड नॉट वांट हिम टू रूल बंगाल। ठीक है, देन डिसाइडेड टू डिथ्रोन हिम एंड लेड अ वॉर इन 1763। अब देखिए, बैटल ऑफ बक्सर के जो जो हम डेट याद रखते हैं वो 1764। अब जो बैटल ऑफ बक्सर है वो एक्चुअली उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाके देखे तो 1763 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जब उनको डिथ्रोन कर रहे थे मीर कासिम को, जब बंगाल के जो मतलब नवाब ऑफ बंगाल थे उस टाइम पे, जब उनको डिथ्रोन कर रहे थे 1763 में स्टार्ट, ये वार हो चुका था। ठीक है, ये वॉर जब स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ 1764 में। अब क्या क्या रीजंस थे वॉर स्टार्ट होने के और क्यों? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सी reasons why battle of Buxar fought. Mir Qasim wanted to be independent, okay, and shifted his capital to Mungar fort from Calcutta. पहले जो कैपिटल कैलकटा थी, जहाँ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम करती थी, जहाँ पे उसका सेटलमेंट था, जहाँ पे उसका फोर्ट था, ठीक है, वहाँ से ही वो एडमिनिस्टर करती थी, जो वहीं से वो इंस्ट्रक्शंस देती थी मीर कासिम को। तो उन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको मुंगर वहाँ पे शिफ्ट कर लिया था, मुंगर नाम की प्लेस पे, विदाउट द परमिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो ही ऑल्सो हायर्ड फॉरेन एक्सपर्ट्स टू ट्रेन हिज आर्मी। ठीक है, उनके पास जो आर्मी थी, देखिए जो कंपनी थी उनका बेसिकली ये रूल था दैट they told the king that they will take care of the army, they will take care of their security। ठीक है, वो उनकी जो आर्मी है उनको ट्रेन करेंगे, दे जस्ट वांट दैट कि कि जो किंग है वो कंपनी पर डिपेंड करे किसी भी ना किसी तरीके से, ओके। सो इट वाज लाइक द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, क्योंकि जो मीर कासिम थे उनके प्रोटेस्ट करने का तरीका ये था कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। तो उन्होंने कैलकटा से अपनी जो कैपिटल है वो मुंगर शिफ्ट कर दी थी। फिर उन्होंने जो उनकी आर्मी जो ट्रेन करने के लिए कंपनी ने बोला था दैट वी विल ट्रेन योर आर्मी, वी विल टेक केयर ऑफ योर आर्मी, लाइक वी विल प्रोवाइड यू विद द डिफेंस आर्मी। तो ऐसा था कि उन्होंने खुद ही ही हायर्ड फॉरेन एक्सपर्ट्स टू ट्रेन हिज ओन आर्मी,
ओके, उन्होंने ये कंपनी पे डिपेंडेंसी नहीं रखी. देन ही ट्रीटेड इंडियन मर्चेंट्स एंड इंग्लिश एज सेम विदाउट ग्रांटिंग एनी स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द लेटर. ओके, सो दिस वाज वन बिग हिट के जो इंग्लिश कंपनी थी, उन जो वहाँ के मर्चेंट्स थे, जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिश थे, उनको और जो इंडियन मर्चेंट्स थे, उन दोनों को सेम ट्रीट कर रहे थे मीर कासिम. ठीक है, नो स्पेशल प्रिविलेजेस वर गिवन टू द कंपनी. ठीक है, तो ये चीज़ से द कंपनी वॉज फ्यूल्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो दीज आर द वाइज. ठीक है, तो हमने वाई पढ़ लिया, हमने वॉट पढ़ लिया. अब देखिए, ये जब हम पढ़ेंगे कि जो मीर कासिम थे, ही डिसलाइक्ड द मिसयूज ऑफ दस्तक, ही डिसलाइक्ड द फरमान्स बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ही ऑल्सो कंस्पायर्ड अगेंस्ट देम बाय फॉर्मिंग एन अलायंस. अब वो अलायंस किसके साथ बनाया था मैं आपको बताऊंगी. एंड ऑल्सो सी, दिस मीर कासिम, ही जस्ट वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, और ये चीज़ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी नहीं लग रही थी. दिस वॉज द रीज़न. ठीक है, ना कॉम्बिटेंस ऑफ द वॉर. मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे, मैंने आपको बताया. शुजा उद दौला नवाब ऑफ अवध उस टाइम पे. अब देखिए, जो अलायंस बना था पहले, देखिए 1763 के बाद एक लाइक देर वॉज अ देर वॉज अ वॉर. इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेज्ड वॉर, बट इट वॉज काइंड ऑफ वॉर जिसमें कि मीर कासिम हार गए थे. वो हार के अवध के जो नवाब थे उस टाइम पे वहाँ पे पहुँचे. वहाँ पे उनको शुजाउद्दौला ने जो अलायंस प्रोवाइड किया. ओके, शाह आलम सेकंड ने भी अलायंस प्रोवाइड किया. तो ये तीनों ने मिलके फिर 1764 में जो बक्सर का वॉर हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो दीज आर द कॉम्बिटेंट्स. देन रॉबर्ट क्लाइव हियर, रिमेंबर रॉबर्ट क्लाइव इन 1757 इन द बैटल ऑफ प्लासी, ही वॉज द वन हु लेड द कंपनी. ओके, लेकिन यहाँ पे वो कंपनी लीड नहीं कर रहे हैं, बट या ही हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस बैटल एज वेल. बट हियर द ब्रिटिश आर्मी मेजर हियर इज हेक्टर मुनरो. Okay, so war break out between Mir Qasim and company. I told you that he hated the farmans by English, he disliked the misuse of dastak. Also, he conspired against them by forming an alliance with Nawab of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam. ठीक है, देन सी विक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश. मैंने आपको बताया कि 1763 से जो स्टार्ट हुआ था वॉर, जो वॉर में दिस मीर कासिम, ही जस्ट फ्लेड अवे. He fled away to get the help from नवाब ऑफ बंगाल. फिर वहाँ पे जाके उन्होंने अलायंस बनाया नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड शाह आलम. ही वॉज द मुगल एम्पर एट दैट टाइम. ठीक है, शाह आलम सेकेंड, जो कि वही हैं जिनको दुरानी रीइंस्टॉल करके गए थे दिल्ली में जब वो मराठा पार को हरा के गए थे यहाँ इंडिया से. फाइन, तो ये तीनों का अलायंस था. फिर उसके बाद कॉन्फेडरेसी विथ लाइक शाह आलम एंड शुजा-उद-दौला. ठीक है, ये मैंने आपको बताया. 1764 जॉइंट आर्मीज फॉट एंड लॉस्ट इन बक्सर. अब जो बक्सर है, ठीक है, अब बक्सर में क्या हुआ कि 1764 में ये तीनों की आर्मी ने लड़ाई की. किससे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कौन हेड कर रहा था उस टाइम पे? हेक्टर मुनरो मेजर थे उस टाइम पे आर्मी के. ठीक है, एंड मीर कासिम एब्सकॉन्डेड, ही रैन अवे. He secretly ran away from the battle itself, and this Shah Alam II and Shuja-ud-Daula, they surrendered in front of the army, English army. ठीक है, अब इनके सरेंडर करने से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रीटी एक हुई थी जिसकी वजह से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल से नॉर्दर्न स्टेट्स में एंट्री ले चुकी थी. Okay, this treaty that took place after the surrender of Shah Alam and Shuja-ud-Daula in front of the English army. This led to the entry of English army into the northern states of India. इससे पहले वो सिर्फ बंगाल में थे. इससे पहले वो सिर्फ they were controlling from Bengal itself. Now they entered, now they annexed the northern states as well. See, I would like to tell you one thing, that this process of annexation of Indian states by East India Company, it started from 1757 when the Battle of Plassey happened, and it later on, it just existed till 1857. So
meanwhile there was one thing that was noticed, that company rarely used direct military attack. Rather, it used a variety of political, economic, diplomatic methods to extend its influence before annexing Indian kingdom. ठीक है, हमने बंगाल में भी देखा कि कैसे उन्होंने पहले 2-3 विलेजेस की ज़मींदारी ली, फिर कैसे उन्होंने कंपनी जो इस्टेब्लिश करी अलग अलग पार्ट्स में, फिर कैसे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी बाद में हुआ, लेकिन वो भी कब हुआ, जब निगोशिएशंस फेल हो गए थे। ओके, बैटल ऑफ बक्सर भी ऐसे ही हुआ, जब भी किंग दे इट वाज जस्ट लाइक दैट, कि जो किंग होता था, अगर इट वुड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कंपनी, इफ एनीथिंग दैट हैपन्स अगेंस्ट द विल ऑफ द कंपनी, तो वो उस प्लेस पे फिर जाके मिलिट्री अटैक करते थे। उससे पहले वो उसी चीज़ को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सॉल्व करने की कोशिश करते थे। हमने देखा वो कैसे ब्राइब करते थे। दे प्लेड पॉलिटिक्स, लाइक they tried to reinstall, they tried to dethrone the king whom they did not like, and like that। और डिप्लोमेटिकली भी वो काफ़ी उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। देन ओनली they moved towards this military method। ठीक है, अब ये है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। दिस डिसाइसिव बैटल गेव एंट्री इनटू नॉर्दर्न इंडिया, एज आई टोल्ड यू। अब वो एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बेसिस पर ही एंट्री मिली थी। वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है, आई विल टेल यू। मीर जफ़र हैंडेड ओवर प्रोविंसेस फॉर आर्मी मेंटेनेंस। सी, जो मीर कासिम थे वो भाग चुके थे। मीर कासिम के बाद मीर जफ़र, जो कि जिनको एक बार लाइक डिथ्रोन कर चुके थे, क्योंकि ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। Okay, he also started protesting, and also he conspired against the company with the help of Dutch. He instigated the Dutch to attack the company, so that the influence of the company on Bengal could be this could decline। ठीक है, तो मीर जफ़र को फिर से री-इंस्टॉल कर दिया गया था। जब वो उनको री-इंस्टॉल किया गया, तो जो आर्मी मेंटेनेंस था वो पूरी तरीके से किसको हैंड ओवर कर दिया गया था, जो ब्रिटिश कंपनी है, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दिया गया था। क्यों? और इसकी वजह से जो होता था, किंग था। अब सी, किंग की अगर कोई चीज़ है, अगर वो कोई दूसरी कंपनी संभाल रही है, अदर बॉडी, some other body is taking care of किंग्स आर्मी और हैंडलिंग द किंग्स आर्मी, तो इसकी वजह से किंग को काफ़ी सारा पैसा देना पड़ता था जो कंपनी थी उसको। ठीक है, अब जो फाइनेंस के लिए पैसा जो दे रहे थे वो किंग थे, कंपनी को पैसा दे रहे थे। ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, ये सब रिजल्ट है बैटल ऑफ बक्सर के 1764 में, जब तीन एक नवाब ऑफ अवध, शाह आलम और नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे मीर कासिम, ये तीनों हार चुके थे वो बैटल में। ठीक है, उसके बाद ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल एक्सेप्ट फॉर सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट ही था जिस पे ड्यूटी लगती थी, वो भी 2% की ड्यूटी। ओके, एंड रेस्ट एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक ड्यूटी फ्री, रेस्ट एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ ड्यूटी। After the death of Mir Zafar, his minor son Nazim-ud-Dawla was appointed Nawab, but the real power of administration lay in the hands of Naib Subedar, who could be appointed or dismissed by the English। मैंने आपको बोला था कि ये directly control नहीं करना चाहते थे, although they wanted their influence to be in the political affairs of that particular province, लेकिन ऐसा था कि वो उस particular region को खुद टेक ओवर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो उस पर्टिकुलर रीजन को खुद टेक ओवर कर लेते, अगर वहाँ के राजा वो हो जाते, देन दे वुड हैव टू लाइक safeguard the entire region, they would have to protect their territory from the attacks that were taking place from across the country। ठीक है, तो वो सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस चाहते थे। Now Treaty of Allahabad, okay, so this treaty basically took place in 1765 between Robert Clive, Shuja-ud-Dawla, शाह आलम सेकेंड। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव वही थे, मैंने आपको बताया। ये जो एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, क्योंकि इसी ट्रीटी से नॉर्दर्न स्टेट्स का कंट्रोल मिल गया था कंपनी को। तो रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला, शाह आलम सेकेंड, इन तीनों के बीच में हुई थी।
अब तीनों के बीच में अलग अलग हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शुजा उद दौला, ठीक है, जो नवाब ऑफ अवध थे, अवध मतलब उस टाइम पे वो यूपी के साइड का एरिया। अब उसमें क्या हुआ था, शुजा हैड टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम सेकेंड, ठीक है, शाह आलम जो उस टाइम पे मुगल एम्परर थे, तो नवाब ऑफ अवध थे, उनसे छीन लिया गया था। ही हैज़ टू सरेंडर इलाहाबाद, अ मेजर सिटी एट दैट टाइम, इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम सेकेंड को दे दिया गया था। ओके, ही वॉज मेड टू पे ₹50 लाख टू द कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी। अब उनको कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े थे। क्यों? क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनको आगे के वॉर से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, आगे के वॉर में कुछ हार्म नहीं होगा, ठीक है, अगर उनको कोई लॉस ना हो, ये इस चीज़ की गारंटी दी। 50 लाख रुपीज़ दिए गए थे कंपनी को एज एज यू नो दिस वाज एन एग्रीमेंट काइंड ऑफ, कि हम 50 लाख रुपीज़ देंगे, आगे से आप हमारी टेरिटरी में बैटल नहीं करेंगे, यू वुड नॉट अटैक आवर टेरिटरी, ऐसा हुआ था। He was made to give बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट, ठीक है, तो ये हो गया। Now Treaty of Allahabad between Robert Clive and Shah Alam II. Shah Alam was commanded to reside at Allahabad, ठीक है, जो मुगल एम्परर थे उस टाइम पे, वो इलाहाबाद में उनको रहने के लिए बोला। The emperor had to issue a फरमान granting Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company in lieu of an annual payment of ₹26 lakh. See, 26 lakh, this amount was to be paid to the company. जब ये अमाउंट पे नहीं कर पाए तो इसके बदले सी दीज वर द कॉम्पनसेशन, दीज वर द पेनल्टीज। अगर आप वॉर हार गए तो या तो यू नीड टू पे सम अमाउंट, और अगर वो अमाउंट आप पे नहीं कर पा रहे तो उसके बदले में आपको टेरिटरी देनी पड़ेगी जो कंपनी है उसको। तो वो 26 लाख रुपीज़ जब जमा नहीं कर पाए थे तो उसके बदले उन्हें व्हाट ही हैड टू ग्रांट, इट वाज दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, 3 मेजर स्टेट्स उस टाइम पे उसकी पूरी दीवानी कंपनी को दी गई थी। शाह आलम हैड टू अबाइड बाय अ प्रोविजन ऑफ ₹53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर निजामत फंक्शन। सी, टेरिटरी भी दी। अब ये जो एरियाज थे, जो कुछ रीजन्स थे, उनकी निजामत फंक्शंस के लिए, निजामत फंक्शंस लाइक आई हैव रिटन ओवर देयर, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो किंग खुद कंट्रोल करना चाहते थे, तो ये फंक्शंस उन्होंने खरीदे थे सो दैट ही कुड हैव अ कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स। ही हैड टू बाय दीज फंक्शंस फॉर 53 लाख रुपीज़, okay, from the company. Now, key points of Battle of Buxar. After the Battle of Buxar, English did not annex Awadh even after Shuja ud Daula was defeated, because it would have placed the company under an obligation to protect an extensive land frontier from Afghan and Maratha invasions. As I told you, okay, all the attacks which were happening from across the country, which were these attacks from across the country, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को मतलब अपना लेते, ओके, देन दे वुड हैव बीन ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर रीजन। इसलिए फ्रॉम लाइक उस टाइम पे अफगान और मराठा इन्वेशंस जो हो रहे थे उनसे प्रोटेक्ट करना पड़ता, ठीक है। देन शुजा उद दौला बिकेम अ फर्म फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश एंड मेड अवध अ बफर स्टेट बिटवीन इंग्लिश एंड फॉरेन इन्वेशंस, ठीक है। ही बिकेम अ फर्म फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश, ही वॉज द नवाब ऑफ अवध एट दैट टाइम, ओके, एंड ही मेड अवध अ बफर स्टेट बिटवीन इंग्लिश एंड फॉरेन इन्वेशंस, ठीक है। अब ऐसा था कि फॉरेन इन्वेशंस हो रहे हैं, इंग्लिश इन्वेशंस हो रहे हैं, तो उसके बीच में जो अवध था, ओके, इट बिकॉज at that point of time the company was very powerful। तो अगर वो कंपनी के अंडर, अगर किसी इन्वेडर को पता है that the company is protecting that particular region, then it would think of attacking that particular region, okay। The Treaty of Allahabad with Mughal Emperor Shah Alam II made emperor a useful rubber stamp of the company. Besides the emperor's फरमान legalized the political gains of company in Bengal। सी, अब वो पॉलिटिकली काफ़ी कंट्रोल कर रहे थे, पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया था, बंगाल था, वो पूरा कंट्रोल कर रहे थे जो कंपनी थी।
Also, the Shah Alam II, the Mughal emperor, he became the rubber stamp of the company. ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी जगह की दीवानी लेने के लिए, कोई भी अगर एग्रीमेंट है किसी और किंग के साथ या रूलर के साथ, तो उसके लिए जो रबर स्टैम्प बन गए थे वो शाह आलम बन गए थे. उनके नाम का ठप्पा लगाकर ही सारे एग्रीमेंट, सारे ट्रेड, एवरीथिंग वाज हैपनिंग विद लाइक ऑन हिज नेम इटसेल्फ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैटल ऑफ बक्सर. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ओके, बेसिकली इट वाज लाइक दिस ऑल दीज ट्रीटीज, दीज वर साइंड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड बिटवीन शुजा एंड शाह आफ्टर विनिंग द बैटल. आप सबको पता है, ये जब बैटल हो गया था तो इट वाज सी कंपनी इट वाज एक्सपैंडिंग इट्स कंट्रोल. ठीक है, इट वॉज एक्सपैंडिंग इट्स कंट्रोल. हाउ? कंपनी स्टार्टेड अपॉइंटिंग रेजिडेंट्स इन द नॉर्दर्न, इन द इंडियन स्टेट्स. अब ये रेजिडेंट्स कौन थे? ये वो थे हु सर्व्ड एंड फर्दर द कंपनीज इंटरेस्ट. ठीक है, वो उस पर्टिकुलर रीजन में रह के जहाँ पे भी कंपनी अपना कंट्रोल करना चाहती थी, उस पर्टिकुलर रीजन में जो रेजिडेंट्स थे उनको अपॉइंट किया जाता था. और वो रेजिडेंट्स का काम क्या था कि जो वहाँ का राजा है, द किंग, इफ़ द किंग वॉज डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द कंपनी, इफ़ द किंग वॉज डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द कंपनी ऑन कंपनीज इंस्ट्रक्शन, देन एवरीथिंग वॉज फाइन. ओके, but as soon as the king would start protesting, as soon as there was some difference in the nature, तो उस टाइम पे there were wars. Okay, then उस टाइम पे there were so many wars, and also the company, the company would attack that particular territory. And see, this anything of different nature happens and against this company's will, then comes the clashing and differences. उसके बीच में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू कंपनी हो रहा है, देन एवरीथिंग इज फाइन, देयर वाज पीस. तो अब ऐसा था कि इस जो किंग था उसको भी प्रोटेस्ट करना था, क्योंकि द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पीपल वाज हैपनिंग एट इट्स जेनिथ. ठीक है, तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसके बाद रेजिडेंट्स को अपॉइंट करने लगे इंडियन स्टेट्स में. लेटर दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, पहले सिर्फ वो ट्रेड करने के लिए दे वर हंग्री फॉर द ट्रेड, but later on they started interfering in the internal affairs. Also they tried to decide who was to be the successor. जैसे कि हमने काफ़ी सारे केसेस में देखा है कि वो खुद रीइंस्टॉल करते थे. तो they were trying to decide that who was to be successor. Then the post holder in administrative services. ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज थी उस टाइम पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, तो उसमें जो पोस्ट होल्डर कौन होगा वो भी कंपनी ही डिसाइड करती थी. द वन हु वुड एक्ट एज द पपेट फॉर द कंपनी, वो उन लोगों को ही अपॉइंट करते थे. देन द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू सब्सिडियरी अलायंस. इसका मतलब ये है कि वो एक अलायंस में दे वर फोर्स्ड टू बी इन पर्टिकुलर अलायंस, जिसमें कि नो इंडिपेंडेंट आर्मीज वर अलाउड. ठीक है, नो इंडिपेंडेंट आर्मीज वर अलाउड टू बी केप्ट. जो किंग था वो इंडिपेंडेंट आर्मीज नहीं रख सकता था, वो सब्सिडरी अलायंस में ही होंगी आर्मी. सब्सिडरी अलायंस मतलब उनके जो कंपनी है वो ही हैंडल करेगी उनकी जो आर्मी थी. उनका ये कहना था कि आप आर्मी मत रखिए, इंस्टेड वी विल प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन. Like the king was to be protected by the company. लेकिन अब ये भी फ्री में नहीं करेगी कंपनी. टू द कंपनी द किंग्स हैव टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेस. जो ये तो फोर्स कर रही है सब्सिडरी अलायंस के लिए, फिर वो बोल रही है कि जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे आप उसके लिए हम मतलब ज़बरदस्ती प्रोटेक्शन दे रही है. ऑल्सो दे आर आस्किंग फॉर they are asking the king to pay for the subsidiary forces. If they failed to pay, अगर वो पे करने के लिए like they were not capable at that time, जैसे कि टैक्सेस कम कलेक्ट हुए, रेवेन्यूज कम आए, if they were not able to pay, then the part of the territory was taken away as penalty, जैसा कि बहुत सारे केसेस में हुआ है.
Okay, there is one example like Richard Wellesley, Governor General. He from 1798 to 1805, Shuja-ud-Daulah was forced to give half of his territories of Awadh in 1801. ठीक है, शुजा-उद-दौला वही नवाब ऑफ अवध, ठीक है. ही बिकेम द फर्म फ्रेंड ऑफ कंपनी. तो ऐसा था कि सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पे करना पड़ता था, तो अगर वो पे कर नहीं कर पाते थे, दे वर अनेबल टू पे, then the part of the territories were taken away from the kings, and they later became under the control of this company. और फिर वो जैसे भी वो पर्टिकुलर रीजन में जैसे भी लोगों को ट्रीट करते थे, जैसे भी एक्सप्लॉइट करते थे, इट वाज नन ऑफ द मैटर ऑफ किंग्स इंटरेस्ट. ठीक है, किंग इंटरफेयर ही नहीं कर सकता था उसमें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बक्सर. बक्सर के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई. बक्सर के बाद काफ़ी पावर आ गई थी. जो इंग्लिश कंपनीज थी वो पहले सिर्फ बंगाल में रूल कर रही थी, अब वो नॉर्दर्न स्टेट्स में भी आ गई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू. ठीक है. And also see, this Hyderabad was also taken away from the king on the similar grounds. ठीक है, हम हैदराबाद की स्टोरी पढ़ेंगे. हम जो सदर्न इंडिया है उसकी स्टोरी, उसका जो हिस्ट्री है वो अलग से पढ़ेंगे. नॉट अलग से, बट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ओनली, बट दोज आर रिलेटेड टू एंग्लो मैसूर वॉर एंड एंग्लो मैसूर वॉर. देयर आर 4 सीरीज. ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उसमें हमें पता चलेगा कि जो एनेक्सेशन था वो नॉर्दर्न इंडिया से कैसे सदर्न इंडिया में ट्रांसफ़र हो गया था, हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो. So I guess this was all about Battle of Buxar and all the things that you need to know for writing the answer. I guess I have given all the details in brief, जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर जो इवेंट है वो याद आ जाए एक बार दिमाग में अच्छे से. ओके, एंड नेक्स्ट we'll be studying the एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 4 वॉर हुए थे. हम चारों के बारे में पढ़ेंगे. उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, क्यों वो वॉर हुए थे, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट वॉर, सब पढ़ेंगे हम. ओके, सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर बैटल ऑफ बक्सर. आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग विथ अस.